we will continue our lecture on group 15 elements, which belongs to P block. So far we discussed atomic properties as well as physical properties of these group 15 elements. Today we will discuss oxidation state of group 15 elements. So what is an oxidation state? Oxidation state in simple terms, we can remember, we can define it. Total number of electrons that an atom either loses or gains in order to form a chemical bond with another atom. So elements of group 15 show common oxidation states of -3, +3 and +5. And they show common oxidation states of -3, +3 and +5. That means they form compounds in these oxidation states. The tendency to show -3 oxidation state decreases down the group. जब हम down the group जाते हैं, this is nitrogen, this is phosphorus, this is arsenic, this is antimony, this is bismuth. ये हम जब down the group जाते हैं, हम down the group, यानी nitrogen towards bismuth अगर जाएंगे हम down the group, the tendency to show -3 oxidation state, it decreases. The reason for this is due to increase in the atomic size and metallic character. इसका ये मतलब है why the tendency to show -3 oxidation state decreases, क्योंकि डाउन द ग्रुप, क्योंकि जब हम जाते हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, बोथ एटॉमिक साइज एज वेल एज मेटलिक करंट इंक्रीजेस, इसीलिए यहाँ पर टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाता है. अगर हम यहाँ देखेंगे इनमें से किसको ज्यादा टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीजन स्टेट, टू फॉर्म कंपाउंड्स इन -3 ऑक्सीजन स्टेट, दैट नाइट्रोजन हैज मोर टेंडेंसी एंड दिस हैज लेस टेंडेंसी, बिस्मथ, बिकॉज इट हैज मोर मेटलिक कैरेक्टर. Its atomic size is more as compared to nitrogen, and it has more metallic character as compared to nitrogen. That's the reason the tendency to show -3 oxidation state down the group decreases. Also, the stability of +5 oxidation state, that means the stability of +5 oxidation is also decreased down the group. ये भी decrease होता है down the group. But here the reason is different. That means due to inert pair effect. यहाँ पर inert pair effect होता है. What is an inert pair effect? For example, we have the configuration NH2 NP3. ये outer shell configuration है, outer most shell configuration ये है. यहाँ पर जो ये 2s electrons होते हैं, that means inert pair effect का मतलब है the tendency of these 2s electrons to remain unshared. ये unshared रहते हैं. That means they don't take part in bond formation. So their reluctance to take part in bond formation is known as inert pair effect. उसी को बोलते हैं inert pair effect, because they prefer to remain inert, they prefer to remain unshared and don't take part in bond formation, show reluctance to take part in bond formation. Therefore only 3 electrons are available for bond formation. Therefore here the tendency, the stability of the +5 oxidation state decreases down the group. See, there is only one compound which is well characterized compound of bismuth in +5, that is BiF5. ये बिस्मथ बनाते हैं +5 में. बाकी जो भी एलिमेंट्स बनाते हैं +5 में, दे आर अनस्टेबल, वो उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, स्टेबिलिटी उनकी कम होती है. सो ये एक देखा गया है कंपाउंड जो बिस्मथ बनाता है +5. बाकी जो +5 में बनाएंगे व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, उनकी स्टेबिलिटी जो होगी दैट विल बी लेस, उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी. सो इन एडिशन टू दीज ऑक्सीजन स्टेटस, नाइट्रोजन आल्सो शो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +1, +2 and +4. Nitrogen ये oxidation status दिखाता है. In addition to these oxidation status, nitrogen also show these oxidation status. But when it reacts with oxygen, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी जब ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, तब ये ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकता है. ये ऑक्सीजन स्टेटस दिखाता है जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ. फास्फोरस भी जो है, फास्फोरस इट कैन आल्सो शो, in addition to these oxidation status, it also show oxidation state of +1 and +4. ये फास्फोरस भी दिखाता है +1 and +4. ये दिखा गया है in some oxoacids, oxoacids of phosphorus और एक क्लास ऑफ कंपाउंड, ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स है. इनमें देखा गया है कि फास्फोरस in addition to these oxidation status +3, +5,
-3, इट शोज +1 एंड +4। ये +1 एंड +4 दिखाता है। अब यहां पर जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन के जो ऑक्सीजन स्टेटस होते हैं फ्रॉम +1 टू +4, दे डिस्प्रपोर्शनेट, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं, दे शो डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं ये +1 टू +4 जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्सीजन स्टेटस दे टेंड टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिड। एसिड में ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं इन एसिड। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब है जब एक ही मॉलिक्यूल, एक ही जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, एक ही ऑक्सीजन, उसको बनेंगे 2 ऑक्सीजन स्टेटस, दैट मींस दैट विल अंडरगो रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक हियर एन एग्जांपल, आई विल टेक HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड है, ये दिस इज नाइट्रस एसिड। यहां पर अगर आप देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट जो है, ऑक्सीजन का होता है -2, 2 का हो गया -4, हाइड्रोजन का हो गया +1, हो गया माइनस, इसका हो गया +3 यहां पर नाइट्रोजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का यहां पर है -3 रहता है नेट, यानी -2 हो गया -4 में से एक घटाएगी हाइड्रोजन का, वो बन गया फिर +3 -3, अब इसका हो गया +3। अब जो ये नाइट्रोजन जो है +3 ऑक्सीजन से ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, इसको बनेगा HNO3 + NO + H2O। अब यहां पर आप देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीजन क्या है, यहां पर देखिए ऑक्सीजन स्टेट क्या है। अब यहां पर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट दैट इज +5, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है यहां पर, ये हो गया -6, ये हो गया +5। अब यहां पर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट है दैट इज +2। अब यहां देखो +3 को बन गया +5, दैट मीन्स यहां इसको हो गया ऑक्सीडेशन, फर्दर लॉस हो गया। +3 बन गया +5, हो गई ऑक्सीडेशन। +3 को बन गया +2, यानी इसने गेन कर दिया, इसको हो गया रिडक्शन, यानी +3 को बन गया +2 ड्यू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, और +3 को बन गया +5 ड्यू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन। इसका ये मतलब है जितने भी ऑक्सीजन स्टेटस आते हैं +1 टू +4, दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन इन एसिड, ये जो नाइट्रोजन के आते हैं। इसी तरह जो फास्फोरस है, फास्फोरस में भी देखा गया है, जो फास्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेटस, जो फास्फोरस होते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेटस, वो भी होते हैं डिस्प्रपोर्शनेट, +5 में होते हैं एंड -3 में होते हैं, यानी +5 और -3 में होते हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट। फास्फोरस के जो इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेटस होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेटस, they undergo disproportionation into +5 and -3, both in alkali, अगर हम alkaline medium लेंगे, and acid, both alkali and acidic medium, दोनों अल्कली और एसिड मीडियम में होते हैं डिस्प्रपोर्शनेट ये फास्फोरस के। अब जो नाइट्रोजन है, इसका आता है मैक्सिमम कोवेलेंसी, आता है नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी, जो नाइट्रोजन की है मैक्सिमम कोवेलेंसी, यानी it can form covalent bonds, maximum covalent bond it can form, that is maximum covalency जो नाइट्रोजन की है, that is 4, वो 4 है, because only 4 orbitals are available for bond formation, that is 1s orbital and 3p orbitals are available for bond formation. So therefore its maximum covalency is 4, it can only form 4 covalent bonds, only 4 orbitals are available, that means 1s orbital and 3 p orbitals are available, total में ये 4 orbitals है। बट जो अदर्स होंगे ना, अदर एलिमेंट्स, दे कैन एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी, जो अदर हेवी एलिमेंट्स हैं दे कैन एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, यानी 4 से ज्यादा वो एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी वो अपनी कोवेलेंसी एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव PF6, ये एक कंपाउंड है, यहां पर जो फास्फोरस की कोवेलेंसी है दैट इज 6, यानी यहां पर उसने 6 बॉन्ड्स बनाए हैं। ये जो हेवी एलिमेंट्स हैं दे कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी। सिर्फ
नाइट्रोजन की इक्विवेलेंसी सिर्फ 4 है, बाकी एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी इक्विवेलेंसी। दे कैन फॉर्म more than 4 covalent bonds like phosphorus in PF6. This is due to, ये क्यों बनाते हैं, क्यों करते हैं अपनी कोवेलेंसी एक्सपेंड? दिस इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन में वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कोवेलेंसी इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4। और ये क्यों करते हैं अपनी कोवेलेंसी एक्सपेंड? बिकॉज दे हैव अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, उनकी अवेलेबिलिटी